Hello, students. Very good morning. Welcome to the Vyas IS. Myself, Siddharth. This lecture is the purpose of this lecture is to give you insight of the NCRT marathon batch, which we have came up with, for which is going to be very beneficial and very important for the prelims 2025 UPSC. We will discuss about the things which we are going to teach you, which we are going to give you in this session or in this complete lecture of the NCRT. One thing we are going to say about our team, that our teams have very experienced, have given many mails and also given the interviews, also teaching in various institutions since last 5 years. So these are our teams, and this is what we are going to give you in our courses, such as we will give you the revision of all NCRT within 25 hours, which is very uh, good thing for you to revise it at uh, revise the whole subjects in many times. Flash revision notes will be provided. Exam oriented class is going to be taken, which is fillers free. Only we will focus on the crucial part of the NCRT where questions are coming. We will look upon the same things in the next slides, where we have got the direct questions from the boxes and the maps. 20 subjects wise test will be provided for you. You can also message the given number, and you can visit the website to enroll in this course, right? So we will look upon that what is our aim, right? हमारा उद्देश्य क्या है इस क्लास से? The aim is provide you detailed analysis of each subject. जितने भी सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी में 6 to 12 हैं, 6 to 12 जितने भी क्लास में एनसीईआरटी हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस हम लोग बताएंगे, जो आपको बेनिफिट्स देगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम रेडी हैंडी नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी, बार बार। थर्ड, विल कंप्लीट द सिलेबस इन अराउंड 25 आवर्स। हमने पहले भी बताया आपको, विल cover whole the syllabus in 24 hours. We will cover each boxes and the maps, which is very important for the prelims perspective, because direct question has been seen from the boxes and the maps. So we will cover up these boxes and maps also. This question which raise up with various students, that why NCRT? एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स, एनसीईआरटी इज डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम इट। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ रहा है। कंसेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हेल्प्स इन एनालिटिकल क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी से कंसेप्ट्स मिलेंगे आपको, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में तो बहुत कम है कॉन्सेप्ट्स की बातें अगर कर ले, बट पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, यू विल गेट वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स ऑन द सम ऑफ द टॉपिक्स, सच एज अगर आप ले लीजिए फेडरलिज्म की बात कर ले हम, राइट? फेडरलिज्म, then you will get a good idea about what does federalism means from the NCRT. Yes, the boxes and the maps are gem for prelims. Boxes and maps जो होते हैं मेनली हिस्ट्री में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं prelims के लिए, and also recommended by toppers. Many toppers has also recommended that you should have start your preparation with the NCRT, or you should have revised multiple times the NCRT before going to the prelims, right? So this is why NCRT is important for our preparation. Okay, we can see some of the questions which have been taken from the NCRT in the PYQ. So first question we will look is, which one of the following ancient times is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? ऑफ कोर्स धौलावीरा। आप सभी को ये पता होगा कि इसका आंसर धौलावीरा होने वाला है, बट ये इसलिए पता होगा क्योंकि आपने पीवाईक्यू में इसको बार बार देखा है, राइट? बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है,
अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है देन यू कैन आंसर दिस, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर, बुर्ज हुम रॉक कट के लिए जाना जाता है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता है, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, ये बताना है हमें कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऑफ कोर्स द आंसर इज मार्क 2 and 3। ठीक है, बुर्जम साइट जो है वो रॉक कट सीरीज के लिए नहीं जाना जाता है। बुर्जम साइट्स कहाँ पे है, ये हम जानते हैं कि कहाँ पे है, कश्मीर में, राइट, कश्मीर में है। बुर्जम किस लिए जाना जाता है, अंडरग्राउंड हाउसिंग फीचर्स के लिए जाना जाता है, नियोलिथिक पीपल के लिए। और मड ब्रिक, देखिए मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स मेगालिथिक पीपल के लिए जाना जा रहा है ना। ग्राउंड लेवल हाउसिंग के लिए जाना जा रहा है, ग्राउंड लेवल हाउसिंग, ग्राउंड लेवल हाउसिंग के लिए जाना जा रहा है ये, राइट। मड ब्रिक जो था मेसोलिथिक के सॉरी मेगालिथिक के टाइम में था, एंड ग्राउंड लेवल हाउसिंग जो था वो था नियोलिथिक के टाइम, नियोलिथिक के टाइम में ग्राउंड लेवल हाउसिंग का चर्चा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल लुक अपॉन द विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थान कवशी सेक्ट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। दिस इज ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड, ये चीज हमें एनसीईआरटी के बुक में मिलता है जब हम आर्ट एंड कल्चर का बुक पढ़ते हैं। तो द आंसर इज यस ऑफ कोर्स जैनिज्म, यू विल गेट दैट। इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं वहां से, और उसमें कुछ नहीं, वो सामने एकदम रहा, ये जो किस चीज के लिए, ये डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट कोटेशन है, एक लाइन है इन बिटवीन द पैराग्राफ्स, राइट। देखिए रिपीटेड थीम्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, जैसे ट्रैवलर्स, प्री मौर्य मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के टाइम, विजयनगर एम्पायर के टाइम, एंड ऑफ कोर्स मुगल पीरियड जो कि मेडिवल हिस्ट्री में आ जाता है। 2013 में, 2023 में, 2019 में भी पूछा गया है इससे क्वेश्चन, राइट। इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन टाउन्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो साइट्स होते हैं जैसे हरप्पन साइट्स हो गए, राइट, हरप्पन साइट्स में हो गए, मेसोलिथिक साइट्स हो गए, राइट। ये सारी चीज़ पूछे जा रहे हैं आजकल। 19 में पूछा गया, 2021 में, 2023 में, तो देखिए फेस कैसे चेंज हो रहा है यूपीएससी का। We will also look upon this kind of things, that how we could go with the uh, trend of the UPSC, right। उसके बाद देखते हैं कि मैप्स और बॉक्सेस से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रखता है। ये एक बॉक्स है जो हमें दिखाता है ग्रीक सेलर के अकाउंट से द स्टोरी ऑफ बरगाजा, राइट। द ग्रीक नेम ऑफ बारूच इज इन, यस, गुजरात। The gulf is very narrow at Bargaja and very hard to navigate for those coming from the sea. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. This is the catch. क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो फिशरमैन थे, क्या उनको किंग डायरेक्ट एम्प्लॉय करता था या सबऑर्डिनेट्स होते थे उनको एम्प्लॉय करने के लिए, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। सो दिस मेक्स द एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। क्या इंपोर्ट करते थे बरगाजा से, वाइन करते थे, कॉपर करते थे, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, दीज आर द मेटल्स। एक्सपोर्ट क्या करते थे, हिमालय से प्लांट्स एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी करते थे, अगेटे करते थे, कार्नेलियन करते थे, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स हम एक्सपोर्ट करते थे, राइट। स्पेशल गिफ्ट्स जो आते थे मर्चेंट्स के द्वारा किंग के लिए, वो होते थे सिल्वर वेशल्स होते थे, सिंगिंग बॉयज होते थे, ब्यूटीफुल वुमेन, वाइन, राइट, फाइन क्लोथ्स होते थे। ये सारे चीज ट्रेड होते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड इंडिया ट्रेड फ्रॉम बरगाजा ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका द ग्रेट। अब देखिए ये मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको बरगाजा पता नहीं कि किसको बोला जाता था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर पूछा जा सकता है कि लोकल फिशरमैन को कौन एम्प्लॉय करता था, है ना। तो ये चीज हो गया, तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये। तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द बॉक्सेस आल्सो,
राइट। कंफ्यूजन हमेशा रहा है बच्चों को कि क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है बॉक्सेस से। ऑफ कोर्स पूछ सकता है, ऑफ कोर्स, एंड पूछा है। लास्ट ईयर वी हैव सीन सम क्वेश्चंस from the boxes as we see here. This is a box also from the UP NCRT, which says, although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick rovers. As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of Archaeological Survey of India, often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan. Thus, many of the ancient structures at the site were damaged. In contrast, Mohenjo-daro was far better preserved. क्वेश्चन क्या था यहाँ से याद कीजिए। अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में पूछा गया था कि हु इज द फादर, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द आर्कोलॉजिकल इंडियन आर्कोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में पूछा गया, राइट। डायरेक्टर जनरल पूछे गए थे कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो दैट इज वाई एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा एनसीईआरटी, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, राइट, ये सबको कवर अप हम कर रहे हैं ओनली इन 25 आवर्स। केवल 25 घंटे में हम सारे कवर अप कर रहे हैं। तो दैट इज गुड थिंग ना, ये अच्छी चीज है, राइट। ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने कनिंगम के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, राइट। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे चीज दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता, बट वी शुड लुक अपॉन दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, है ना। जैसे हम बात कर ले अभी, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे हम बात कर ले कि इनके बारे में जान लिया, अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में। अब बहुत सारे फैक्ट्स और भी दिए हुए रहते हैं बॉक्सेस में। जैसे 1921 में हमने डॉक्टर सैनी के बारे में जाना है कि डॉक्टर सैनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था, राइट। डॉक्टर सैनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया। 1924 में सन जॉन मार्शल 1924 में सर जॉन मार्शल ने किया डिस्कवर। किसके बारे में? आईवीसी के बारे में। तो इस तरह के फैक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बना देता है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, इस तरह से हम डायग्राम यूज कर लेंगे, फ्रेम को यूज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दिमाग में फ्रेम हमेशा, डायग्राम हमेशा ज़्यादा इफेक्ट डाला है कोई भी चीज़ को याद करने के लिए। ऑलवेज डायग्राम, ऑलवेज, और फ्लो चार्ट ऑलवेज impacted very much well to revise the things or to remember the things, right। तो ये हो गया। हुनसिंगी, हुनसिंगी क्या है? तो हुनसिंगी में नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स have been found, tools, limestones, right। Dog was the first animal to be tamed, you have to remember these things also, है ना। तो हुनसिंगी में क्या मिला था? जो सबसे पहला अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स है जो यहाँ पे पाए गए थे, और यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं दैट वाज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हुनसिंगी में जो टूल्स मिले थे किस चीज से बने हुए थे? स्टोन था, जनरल स्टोन था, लाइमस्टोन था, ग्रेफाइट था, राइट, सेडिमेंट्री रॉक्स था। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे इस कोर्स को लाने के लिए, इस बैच को लाने के लिए? एक तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि पूरा एनसीईआरटी हम आपको 25 घंटे में कवर अप करा दें, कॉन्साइज रखें, क्रिस्प रखें, फिलर से फ्री रखें, ताकि आप इसको बार बार देख सके, रिवाइज कर सके और आपको कॉन्फिडेंस दे। बिकॉज रिवाइजिंग ए सिंगल सब्जेक्ट्स मेनी टाइम्स दैट विल गिव यू द गुड कॉन्फिडेंस, एंड एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं, ये आपको बूस्ट अप करता है कि मोटिवेशन देता है, यस आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई कैन अचीव दिस एग्जामिनेशन,
राइट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सेव योर टाइम। आपका समय बचेगा, क्योंकि आप सोच के देखो 25 घंटे में अगर आप पहली बार में कवर अप कर रहे हो, आपके पास नोट्स है, आपने अगर लेक्चर देख के नोट्स बनाया है, देन यू कैन कवर दैट होल थिंग्स इन अराउंड 10.5 hours इन द नेक्स्ट रीडिंग। 10 घंटे में आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो उस पूरे एनसीईआरटी को। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग्स। एक दिन में आपने पूरा एनसीईआरटी कर लिया, सोच के देखिए, अगर वीक में या 10 दिन पे आप एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, तो यू हैव 120 days। आपने 10 से 12 दिन, 10 से 12 बार एनसीईआरटी रिवाइज करना है, तो दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। तो टाइम यहाँ पे बचेगा आपका। हेवी अमाउंट जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डिमांड कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, वो आपको नहीं देना पड़ रहा है, बहुत मिनिमम चार्जेस पे हम लेके आए हैं इसको, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम मैप के थ्रू भी जानेंगे कि बहुत सारे साइट्स जो होते हैं, राइट, बहुत सारे साइट्स हैं, वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे बिलोंग कर रहे हैं हमारे लिए, राइट, ये सब जानेंगे। रिलीजियस बिलीव्स, है ना, रिलीजियस बिलीव, हड़प्पा के पीपल के रिलीजियस बिलीव क्या था, ये हम देखेंगे। तो हड़प्पा के पीपल का रिलीजियस बिलीव अब जान दें, तो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे वो, है ना, लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे, गॉडेस, मदर गॉडेस थे, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड सन को भी वो करते थे। तो ये सब तरह के चीज़ें हम देखेंगे उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान में रखना है हमें। मोहनजोदारो जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें, फैक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि ये तो कहीं भी पढ़ने मिल जाएगा, बट हाँ, तो कहीं भी पढ़ने वो टुकड़ों में है। Some facts you will get in the some other book, some facts will you get in another book, but NCERT completely is a gem for the preparation of the prelims. And we are coming with the whole things which are very crucial or important in NCERT. पूरा NCERT पढ़ना is not a quite possible for now. And if you are reading the quite whole NCERT for now, then you will not able to revise the NCERT from 6 to 12, which we are going to take in multiple times, like 10 times or 8 times or 12 times, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज हो जाते हैं। हम साइट्स देखेंगे मैप के थ्रू कि मेसोलिथिक साइट्स कौन से हुआ करते थे, है ना, मेसोलिथिक साइट्स कौन से होते हैं, पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ पे थे। तो वी विल लुक अपॉन दैट्स, रेनीगुंटा हो गया, करनूल हो गया, ये सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सब चीज़ें, और इम्पॉर्टेंट बनाता है हमारे इस प्रिपरेशन को, है ना। इस तरह की चीज़ें देखेंगे। Yes, of course, we are going to take from the class 6 to 12 every subjects, 6 से 12 तक होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्री हिस्टोरिक टाइम से शुरू करेंगे और हर्षा तक, हर्षा एम्पायर तक ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है ना। हम लोग ऑल्सो, वी विल ऑल्सो सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद इन द टॉपिक्स, ये भी देखेंगे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी गिव द टेस्ट ऑल्सो विच वी विल प्रोवाइड 20 टेस्ट, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी। हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि पूरा एनसीईआरटी जो है हम 25 घंटों में कवर कर रहे हैं। एवरी एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू कवर इन 25 आवर्स, सॉरी। बहुत फैक्चुअल नॉलेज के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बॉक्सेस एंड मैप्स, वी विल ऑल्सो कवर द बॉक्सेस एंड द मैप्स। वी विल see what kind of question can be asked through that particular subjects और particular boxes, जो कि अभी तक बहुत नेग्लेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे बच्चों के द्वारा, है ना। ये सब कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में। इनरोल कर लीजिए आप वेबसाइट पे जाके, नंबर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं, और जल्द मिलते हैं फिर क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।